શિયાળામાં બીપી વધી જાય છે, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ વધી જાય છે, દુખાવો, એસ્થમા અને સોરેસિસ વધી જાય છે. તો બીપી નહીં વધે અને ઘણા બધાનું લો બીપી પણ થાય છે. એના માટે શું કરવાનું? સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરવાના. આ તો બટરફ્લાય અને બંને હાથ આમ ખંભા ઉપર મૂકીને આમ ફરવાના, ઊંડા શ્વાસ ભરી ભરીને. તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરી લો, થોડાક આસનો કરી લો, અને પ્રાણાયામ તો બહુ જ જરૂરી છે. અને રિલેક્સ રહો. જેનાથી બીપી વધે એ કામ નહીં કરો. નમક ઓછું ખાવાનું, સ્ટ્રેસ નહીં કરો, ચિંતા નહીં કરો, પોતાનું કર્તવ્ય પૂરું કરો. પછી પ્રભુ જે કરે એમાં રાજી રહો. ઊંડા ઊંડા શ્વાસ ભરીને આવી રીતે આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ તો બહુ જ જરૂરી છે. બીપી ફક્ત પ્રાણાયામથી જ દૂર થાય. એના માટે 5 પ્રાણાયામ મહત્વપૂર્ણ છે. એક તો શીતરી શીતકારી,
આ ભ્રામૃત ગીત પણ 11-11 બાર 21-21 બાર કરી શકાય બ્લડ પ્રેશર વાળા ભાઈઓ બહેનો. ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીત. ઓ પૂરું શ્વાસ ભરવાનું હોય પછી બહાર કાઢવાનું. પછી ઓંકાર અને ગાયત્રીનું ધ્યાન આજ્ઞા ચક્રમાં હૃદય ચક્રમાં મનને કેન્દ્રિત કરીને ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓંકાર અને ગાયત્રીની ઉપાસના મૌન ધ્યાનથી અંતર્મુખી થઈને ઓંકાર બ્રહ્મ સાથે એકાકાર થઈને જે આપણો નિત્ય શબ્દ બુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જ્યોતિર્મય તેજોમય સ્વરૂપ છે એમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જવાનું. પછી બંને હાથ ઉપર લઈને તો મૌન ધ્યાન કરવાનું અને આત્મ સ્વરૂપમાં બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈને આ શરીરને ઇન્દ્રિયોને મનને અને આખા અસ્તિત્વને દ્રષ્ટાભાવથી જોવાનું. અને દ્રષ્ટા દૃશ્ય માત્ર શુદ્ધો પ્રત્યાનુપસ્ય પ્રકાશ ક્રિયા સ્થિતિશીલમ ભૂતેન્દ્રિયાત્મકમ ભોગા ભોગાર્થમ દૃશ્ય. આ બધું જે દૃશ્ય છે આ ભગવાનની મહિમા છે, ભગવાનના જ્ઞાન, ભગવાનની પ્રેરણા, ભગવાનની શક્તિ, ભગવાનનો જ સંબંધ અને ભગવત નાતે બધા કાર્યોનું નિષ્પાદન કરો તો તમને કોઈક દિવસે બીપી થાય જ નહીં. આ તો વાત થઈ યોગમાં પ્રાણાયામ અને ધ્યાનની. અત્યારે વાત છે યોગાભ્યાસમાં યોગાસન.
22 बहुत लंबा साइकिल चला। 22 लाख से भी ज़्यादा रुपए मेरा खर्च हुआ और रात में बिस्तर पे मैं तड़पता था, 8-8, 9-9 इंच ऊपर उछलता था। और इस सारा केवल जो दवाइयाँ थी, कोरोना से मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई जितना दवाइयों से, जो एलोपैथिक दवाइयाँ थी उन्होंने मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट किया। 2 महीने तक मेरी आवाज़ चली गई। कागज़ पर लिख करके मैं घर वालों को मैसेज करता था। पूरे मुंह से लेके पेट तक छाले हो गए थे। 1 चम्मच से लिक्विड मुंह टेढ़ा करके पीना पड़ता था। पैर में क्लॉटिंग हो गई, 2 जगह खून की क्लॉटिंग हो गई और खांसी 24 घंटे आने लगी। और लगभग 2.25 महीने मैं सो नहीं पाया, लेटा लेटा नहीं बल्कि बैठे बैठे, और 20-20, 25-25 मिनट केवल लेट पाता था। मैं फिर योग देख के, स्वामी जी को देख करके मैं योग ग्राम आया पहली बार। तो मुझे लगा यहाँ आने के बाद, जब पहले दिन मैंने यहाँ पर योग किया तो मुझे स्वामी जी के साथ मुझे लगा कि ये स्वर्ग है। और यहाँ पर मैं दूसरे दिन दौड़ने लगा और इंजेक्शन लेके आया था। मेरी पत्नी ने, मेरी वाइफ ने इंजेक्शन 7 दिए थे कि ये वहाँ लगवा लेना, क्योंकि बहुत रिस्की था। डॉक्टर कह रहे थे कि क्लॉटिंग होगा तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। बताओ। तो मैं इंजेक्शन लेके आया, लेकिन सारे इंजेक्शन बचे हैं और अब वापस लेकर के जाने पड़ेंगे, वापस कराऊंगा। 5 साल से मुझको हाई बीपी था और मैं यहाँ पर बीपी तो भूल गया कि बीपी भी की दवा मुझको खानी है। मैं एक भी दिन यहाँ बीपी की दवा नहीं। कितना रहता बीपी? बीपी मेरा ऊपर होता था 180, 82, नीचे वाला 117, 118। अभी तो डॉक्टर साहब ने अभी कल नापा तो 89, नीचे वाला 89 जो बहुत हाई रहता था, ऊपर 142। तो आ तो सुरेंद्र मेहता ने भाई हमारा, ये तो एक बात है, तेनाથી કશું નહીં થાય ને તો ઊંડા ઊંડા શ્વાસ ભરીને આમ જ કરી લો, થોડા થોડા આસનો કરો। હા, बहुत बहुत આશીર્વાદ। હા, અને આ બીજા તો અમારા ભાઈ છે रितेश, એ તો नेवी में હતા। અને कहाँ पर ड्यूटी पर थे आप? स्वामी जी, मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हूँ और लगभग 8 साल से मुझे हाई बीपी की कंप्लेंट थी। और कहाँ पर ड्यूटी पर रहते थे? मैं शिपिंग में हूँ सर, LNG शिप में काम करता हूँ। तो सीधा सोई जाओ जो तो ये वर्ल्ड में कहीं भी जाना पड़ता है। और पिछले लगभग 8 साल से बीपी की दवाई मैं ले रहा था। स्वामी जी का टीवी प्रोग्राम देखने के बाद मैंने उनको फॉलो किया, योगा और प्राणायाम शुरू किया। उसके साथ साथ जो पंचामृत का बताते थे, अजवाइन का, सौंफ का, इनका सबका जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी, एनो पानी रात्रे पानी में पड़ाई सवारे पी जाओ ने पीवानु चालू करे। तो बीपी कितने दिन में ठीक हो गया? बीपी मेरा स्वामी जी 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद की मुक्तावटी ली है कुछ दिनों तक। अभी यहाँ योगाश्रम में आने के बाद मुक्तावटी भी नहीं ले रहा हूँ और मेरा बीपी 115, 80, 120, 80 से ऊपर नहीं जा रहा कभी भी। टीवी पर જોઈ નહીં જા આ લાભ પામ્યો છે। એટલે યોગ ભગાવી રોગમાં અમે ટીવી પર યોગ શીખાવીએ તો આમાં તમે ટીવી ઉપર જેવી રીતે હું કહું છું બસ ફોલો કરો યોગાભ્યાસ। અને આ તો ખાલી ફક્ત બ્લડ પ્રેશરની વાત નહીં, તમે દરેક રોગને મટાડી શકો છો। અત્યારે અમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ને એમાં મર્કટાસન, અર્ધપવનમુક્તાસન, એક એક પગથી કરી લો। જેને કમરમાં દુખાવો હોય તો નહીં તો બંને પગથી કરી લો। આ બધું કમરનો દુખાવો, બીપી, શું શું સારું થાય। બસ એક જ વાત છે, દરરોજ જેટલું થાય એટલું કરી લેવાનું, કરવાથી થશે, કરને સે હોગા। ધીમે ધીમે કરવાનું બહુ। હા, જેને બીપી હોય ને તો અડધી મિનિટથી વધારે નહીં કરવાનું, 20-30 સેકન્ડ કરવાનું। હા, પછી અંતે રિલેક્સ થવા માટે આ સેતુબંધાસન પણ સારું છે। અને અંતે તો જેને બ્લડ પ્રેશર છે ને, આસનોને અંતમાં શવાસન બહુ જરૂરી છે બધા માટે। સાક્ષી ભાવ સાથે દેહને શિથિલ કરી દેવાનું, આત્મ સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ જવાનું।
માથાથી માંડીને આખા શરીરને આમ સંકલ્પ સાથે ઢીલા મૂકીને પછી બંને હાથ આમ આમ કરીને અને પછી ડાબી સાઈડ આમ આમ બેસવાનું. પછી તો આ બધા અભ્યાસો, અને એમાં ખાસ વાત છે, મેં પહેલાં જ કીધું તમને કે પ્રાણાયામ જેનાથી આ બધું કશું નહીં થાય ને, તો હાથ પગના સૂક્ષ્મ વ્યાયામ પ્રાણાયામ, એનાથી જ ફક્ત પ્રાણાયામથી જ અને ખાનપાનના નિયંત્રણથી જ તમારી બીપીની પ્રોબ્લેમ સારી થાય. આ તો અમે આ બે તો બહુ જ કષ્ટમાં હતા. એવી જ રીતે જેને પ્રોબ્લેમ હતી એ બધાએ અમારે સાથે દરરોજ 10-20 ભાઈઓ અમારે સાથે યોગ ખાલી કરતા જ ના હોય, એને અમે મટાડ્યું છે. ઘણા બધા આમ કે એનાથી શું થાય, એટલે અમે એવિડન્સ સાથે વાતે કરીએ. હા, हमारे साथ भाई છે. તમને કેટલા વર્ષોથી હતું? मेरे को 25 साल से जो था ब्लड प्रेशर था. मैं विजय बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ और मैंने पहले टेलमट 40 मेरे को टैबलेट्स देते थे, काफ़ी मैंने खाई और उससे मेरे को कई परेशानियाँ हुई, यूरिन वगैरह के अंदर भी इन्फेक्शन वगैरह. तो वो सब मेरा जो है प्राणायाम मैं देखता था, स्वामी जी का प्रोग्राम. मेरे पैर में जब रिटायर हुआ था तो राइट नी के अंदर मेरे पेन हो गया था, चलने में प्रॉब्लम होती थी. तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ऐसे नीचे नहीं बैठेंगे, चेयर पे ही बैठेंगे, नहीं तो घुटना रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाएगी आपको. तो मैं प्राणायाम करता था. उस प्राणायाम की वजह से और योगा करने की वजह से मैं इधर यहाँ पे जो है आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई अब प्रॉब्लम नहीं है. હા ચલો, આ તો એક ભાઈની વાત થઈ. દરરોજ અમે અહીંયા સાધકો સાથે જે યોગ કરીને લાભ પામ્યું છે. એક ભાઈ તો અહીંયા છે, એને નાકથી લોહી પડતા હતા. इधर आओ. मुझे पता नहीं था कि मेरी बीपी हाई है. मुझे स्वामी जी 3 महीने पहले अचानक मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई और इतना ब्लीडिंग हुआ कि जाते ही लेटना पड़ा. आधे घंटे लेटा तो ब्लीडिंग बंद हुई. फिर जाके नहाता हूँ एज पर द कोविड सिचुएशन. सीधा वॉशरूम में नहा रहा था, फिर से ब्लीडिंग शुरू हुई. फिर वॉशरूम में लेटना पड़ा. वॉशरूम से बाहर आके कपड़े नहीं पहन पाए, फिर से ब्लीडिंग शुरू हुई. तो फैमिली में एक डॉक्टर है बच्चा, उसको फ़ोन किया, लो मामा जी एक बार बीपी चेक करा लीजिए आप. बीपी चेक कराया तो नीचे का 100 और ऊपर का 156. मुझे नहीं पता था. तो 3 महीने से मैंने बीपी की टैबलेट्स खाई और 3 महीने से वो खा रहा था. 5 साल से मैं कोई फ्रूट्स, कोई भी, इवन 2 साल से एक सैलेड का पीस मैं खीरा भी खाता था, गले का इन्फेक्शन. और 3 दिन से मैंने अपने 15 टैबलेट्स खाता था. मुझे मल्टीपल इश्यूज़ हैं, मुझे लिवर, बोन्स, मसल्स, सब कुछ है, कुछ नहीं, सारी दवाइयों पे 15 टैबलेट इंग्लिश की खाता था. 3 दिन से मैं एक भी टैबलेट नहीं खा रहा हूँ. धीरेन्द्र तिवारी. धीरेन्द्र तिवारी ने तो बहुत जोरदार काम कर दिया भाई. एक भी टैबलेट नहीं खाई है स्वामी जी. जोरदार अभिनंदन. बहुत बहुत तो 15 गोलियों खावे. मैं 5 साल से 15 टैबलेट डेली खा रहा हूँ. और तुमको क्या था विजयंता? स्वामी जी मुझे सार्कोडोसिस हुआ था, तो उसमें मेरे पहले लंग्स अफेक्ट हुए, तो मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आती थी. थोड़ा सा भी, इतना सा भी चलने से मेरी सांस फूल जाती थी. और किडनी अफेक्ट हो गई, तो क्रिएटिनिन बहुत हाई हो गया था, 4 हो गया था. और आँख में भी आ गया था. जब तक डॉक्टरों को पता चला कि सार्कोडोसिस है, तब तक वो आँख में फैल गया था. आँख भी गई इस चक्कर में कि, तो वो सोचे टीबी है तो टीबी की दवाई देते रहे. फिर जब पता चला स्टेरॉइड खाए तो 80 mg स्टार्ट किया था, तो बहुत हैवी था, तो एंटासिड भी देते थे, पैन 40. तो मैंने 3 साल खाए. उसके बाद मेरे आँख में लेकिन फैल रहा था, तो उन्होंने बोला जो खा रहे हो उससे पूरे बॉडी में असर धीरे धीरे होता है. तो आँख में मैंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लिए हैं 2. मतलब वो एक इंजेक्शन 10,000 का आता है, और वो इतना डर लगता है लगाते वक्त, क्योंकि वो आपके वाइट एरिया है ना, जो आँख का कॉर्निया के बगल में, वहाँ लगाते हैं. तो आप बॉडी में कहीं इंजेक्शन लगाओ तो आप आँख बंद कर सकते हो, लेकिन आँख में इंजेक्शन लगा रहे हो तो आप क्या करोगे? સાર્કોડાયસિસ, પછી બ્લડ પ્રેશર, પછી મલ્ટીપલ પ્રોબ્લેમ્સ हैं, फिर એનાથી બહાર નીકળી જતા. उसके बाद हाँ, फिर मैंने अभी वेट 84 हो गया था. उसके ये स्टेरॉइड खाने की वजह से हाई बीपी हो गया, थायराइड भी हो गया, बैक पेन हो गया. और जब
यहाँ आने से पहले तक लॉकडाउन में मैंने बहुत योगा करके कपालभाति 1-1 घंटा करके वेट मैंने 10 किलो पहले ही कम कर लिया था यहाँ आने से पहले। और यहाँ कितना यहाँ आने के बाद 3-3.5 किलो 7 दिन में। अभी आज मेरा लास्ट डे है तो तेरे गाल को एकदम ठीक हो गए। 7 दिन में मैंने वेट लॉस આમ જાડા જાડા થઈ ગયા હતા, આખા શરીર અને મૂઢો પણ જાડો જાડો થઈ ગયો। तो वेट लॉस कर लिया। बैक पेन बिल्कुल नहीं है मुझे। और आपको? हम वैद्य जी से दिखाए पतंजलि में, हम अपने डॉक्टर दिखाए तो बोले बीपी बढ़ा हुआ है, दवा खाओ, मेरे लिए तुम्हारे लिए वारंट है। तो हमने उनसे दवा नहीं ली, चले गए पतंजलि में, वही मुक्तावटी खाया, योगा करते रहे। अब हम ठीक हैं। अब तुम पत्नी को दिखाने के लिए आए थे, आर्थराइटिस के लिए, उनका भी ठीक हो गया। और शुगर हो गया था। ये तो एनी पत्नी ने आर्थराइटिस છે जी, એ તો એને તો પ્રોબ્લેમ સારી થઈ જ ગઈ, એની પત્નીની પણ પ્રોબ્લેમ સારી થઈ ગઈ। હા, और अब क्या हाल है? अब तो चल रहे हैं। अब चलने लगे? 2 दिन नहीं चले, के बाद तो पूरा चल रहे हैं। पूरा अब तो गाड़ी लेते ही नहीं है। पूरा चलते हैं? हाँ, और पूरा हाथ चलते हैं। उठाओ। पहले उठता नहीं था? नहीं, कहाँ जाम हो गया? यहाँ ये तो अभी देखिए, ये तो एकदम ऐसे रहता था। હાલ અને શાળામાં તો દુખાવો વધારે વધી જાય અને હાથ સારું કરી લીધું, પગ સારું કરી લીધું, ચાલ દોડવા લાગી। हाँ, योगा ग्राम से भी आए हैं। हेलो। जी, पहले मैं योग बिल्कुल भी नहीं करती थी और शायद मुझे विश्वास भी नहीं था। मैं घर पे मेरे हस्बैंड कहें कि करा करो, ज़बरदस्ती उन्होंने कराया मुझे। 1 महीने पहले की बात है। तो उस समय बीपी बहुत ज़्यादा थी, 200 तक रहती थी। तो उसमें दवा खाती थी। फिर इसके बाद आयुर्वेदिक दवा लिया मैंने, उससे थोड़ा कंट्रोल हुआ। फिर एकदम ही लो हो गया। फिर मैं यहाँ आई, मैंने कहा यहाँ अब जाऊँगी तब देखती हूँ, योगा करूँगी। फिर अब एकदम सही है। पैरों का ये था, बिल्कुल नहीं मुड़ता દુખાવો था। થઈ वो ગયો, आज સારું, बिल्कुल બ્લડ પ્રેશર सही સારું है। થઈ ગયો। એને તો ડિપ્રેશન હતો પતિની મૃત્યુ પછી। मेरी तो देखना स्किन फट गई पूरी तरह से बीपी के कारण। इतनी बड़ी, इतनी ब्लैक पूरे। अब तो बहुत, यहाँ आने से तो बहुत अच्छी हो गई। मालिश हुई ना मेरी, ये पूरा ब्लैक, अंदर तक ब्लैकनेस हो गई थी। ब्लड बिल्कुल सूजन भी? सूजन तो बिल्कुल जी, हड्डी दिख गई मेरी। नहीं, हड्डी दिखती नहीं थी। इतनी फूल रहे थे पैर मेरे स्वामी जी। उंगलियों में अंगूठियां कुछ नहीं पहन पाती थी, बिल्कुल ऐसे फंसे पड़े थे। बिल्कुल आंखों पे, चेहरा पे, पूरी बॉडी। जो कपड़ा मैं आज सिलवाती थी वो 8 दिन बाद ही दोबारा से गट्टे हो जाते थे। मतलब इतना ढीला कपड़ा पहनती हूँ तब भी स्वेलिंग बहुत होती थी। लेकिन यहाँ स्वेलिंग मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। 200 बीपी था तो वो भी क्योर, 200 से ऊपर ही रहता था स्वामी जी। कभी और डॉक्टर ने बोला था कभी आपका बीपी ठीक नहीं होगा। मैं योगा करती हूँ लेकिन बीपी में गोली खाती थी 80 mg टेलवा सहज सुबह में, और एक रात में 40 mg की 2 टाइम टेबलेट लेती थी स्वामी जी। और नींद तो मुझे आती नहीं थी। अब मेधा क्वाथ पीती हूँ शाम को और सो जाती हूँ बिल्कुल, और सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। तो बीपी सारू, डिप्रेशन सारू थी गयो, सोजा मटी गया, वजन घटी गयो। एक साथ आटला बधा लाभो शानाथी थाय? योगथी। એટલે યોગ વગાવે રોગ એ માત્ર કોઈ સ્લોગન નહીં, નારા નહીં, આ જીવનના પરમ સત્ય છે। એટલે યોગ વગાવે રોગમાં દરરોજ અમારે સાથે યોગ કરજો, સદાય નિરોગ રહેજો। એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા।